अच्छा देखो, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो तुम पहले कॉपी में लिख लो. राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन योर कॉपी यूजिंग पावर सीरीज मेथड. धीरे धीरे स्टार्ट करो. X of z is equal to 1 plus 2z inverse divided by 1 minus 2z inverse plus 2z to the power minus 2. Then I will tell you how to solve that one. So this is the problem xz is given here. Now thing is that you have to use using power series method. So that is nothing new. That is long division method, which I have mentioned earlier. So you have to divide the upper with the lower value. Okay, and the result what will you get? From there you have to find out the inverse transform. So things that you have to find out inverse for एक्सेल. एक्सेल का टाइप क्या होगा? वजाल. सो जीरो से इंफिनिटी तक ये होगा, पॉजिटिव साइडेड होगा. एंड एक्सेल इज ए नॉन पॉजिटिव. So that is the reverse of that. So for these two conditions, you have to find out the inverse transform, that is XM. So what will you do? What is the process? Very well, I am telling you. You must do this one. So first for your Ojal के लिए तुम क्या करोगे? To obtain Ojal sequence of XM, you have to write both the polynomial, means the numerator and the denominator. What you have, that is called the polynomial. So you have to write both the polynomial of xn in decreasing power of z. In decreasing power of z. And then perform direct division. तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में both the polynomials are arranged in decreasing power of z. So you need not to do anything.
Okay, you need not to do anything. Thing is that both the polynomial, the numerator and the denominator, both are in decreasing power of z. So first you write down the first problem, that is x of z is equal to 1 plus 2z inverse divided by 1 minus 2z inverse plus z to the power minus 2. ये है तुम्हारा given problem, and I am telling you everyone please show me. तो फॉर कॉजल सिस्टम के लिए एंड सिग्नल के लिए, नॉन कॉजल के लिए, तो कॉजल के लिए तुम क्या करोगे, ये जो दो पॉलिनोमियल है ऊपर में एंड नीचे में, दैट इज डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर, ये दोनों को तुमको क्या करना है, दोनों को यू हैव टू राइट बोथ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड, डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, नीचे भी जो है डिनोमिनेटर भी जो पॉलिनोमियल है वो भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में है। तो तुमको ये सीक्वेंस बनाने का कोई जरूरत नहीं है, दैट इज गिवन। सो ये प्रोसेस है, ये नहीं होता तो तुमको ये अरेंजमेंट करना पड़ता है। सो फॉर कॉजल के लिए, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ जेड, तो नाउ यू सिंपल डिवाइड 1 minus 2z inverse plus 2z to the power minus 2 and 1 plus 2z inverse। सो ये जो है ये सिंपल डिवीजन तुमको मैन्युअली करना पड़ेगा। सो फर्स्ट डिवाइड 1 plus 2z inverse by this value and tell me the result। तो ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, तो तुमको चार तीन चार पॉइंट तक जाना पड़ेगा, डिवीजन 3-4 पॉइंट तक जाना पड़ेगा, ठीक है, 3-4 पॉइंट तक जाना पड़ेगा। तो सिंपली यू डिवाइड द फर्स्ट वन विद द लोअर, the denominator and the numerator. So numerator must be divided by denominator. So you please divide, simple division. Okay, simple direct division method you have to apply here. So please divide the upper with the lower and tell me the result step by step for xn is causal. So simple divide करो, to perform first, then I will send you the result, will provide you the solution. First you try it. So in our last class में भी ये प्रॉब्लम मैंने दिए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। So ये using power series method means nothing new, it's a division method, long division method. So there are two processes are there how to perform the long division method. Before division start, okay, before doing division that I mentioned you, for causal system के लिए तुमको क्या करना होगा, write both the polynomial of xn in decreasing power of z and then perform direct division method। सो पजल के लिए ये ऊपर में एक पॉलिनोमियल है, नीचे में एक पॉलिनोमियल है, ये अरेंज बोथ द पॉलिनोमियल बाय डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड, बट यहाँ पे वो बना हुआ है। सो यू कैन स्टार्ट द डिवीजन, डिवाइड द division, make the direct division process and give me the result, tell me the result of this division. It will not be a complete division, it will have 2 3 4 steps. You just go 2 3 3 4 step, you can go for 4 step and then plus dot 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 dot. Have you done anyone? It's a complete division method, is 5 standard division. Okay, nothing new it is. It's a
10th standard और 8th standard division. Then I will provide you the answer. पहले तुम डिवीजन बनाओगे. जो आंसर दोगे ना उसका तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा बात सुन रहे हो. भूल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. भूल तो होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं. मिस्टेक तो होगा, लेकिन यू टू ट्राई. And this is not tough at all. This is simple division, direct division. I am telling you to make it direct division man. कोई कर रहे हो क्या? पूनम, प्रिंसी. यस सर. यस सर. अच्छा, ये जस्ट Yes, सिंपल sir. डिवीजन करना है, हाँ? ये डिवाइड करो. मैं बोल रहा हूँ ना, जब तुम्हारा ये क्वोजल होगा ना, तो क्वोजल के ये ऊपर में एक पॉलिनोमियल है, नीचे में पॉलिनोमियल है. ऊपर में एक एक्सप्रेशन है और नीचे में एक एक्सप्रेशन है. तो फर्स्ट तुम्हारा ये स्टेप होगा, जो तुमको ये पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में अरेंज करना है. लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड तो बना हुआ है, तो सिंपल डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवीजन मेथड अप्लाई करो, और रिजल्ट जो मिलेगा वो तुमको बोलना चाहिए. ठीक है? इस तरफ आ रहा है क्या? 1+4 जेड इनवर्स प्लस 7 जेड टू द पावर -2, इस तरफ आएगा. और डिवीजन का जो रिजल्ट है, रिजल्ट तुम बोलो, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है, क्योंकि डिवीजन तो तुमको सबको आता है. प्रिंसी है ना सर इधर? डिवीजन कर. हेलो. हाँ, डिवीजन हो गया. हाँ सर, डिवीजन करने पे आया 1 + 3 हम्म. जेड + 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर -2 जेड + 1. डिवीजन का रिजल्ट कितना है? रिजल्ट ऐसा होगा शायद, वन नहीं प्लस नहीं फोर सर, नहीं जेड सर, थोड़ा सा इनवर्स गलत. 1+4 जेड इनवर्स प्लस 7 × जेड टू दी पावर -2, इस तरफ आएगा. देखो, ये डिवीजन तो भूल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा का रिजल्ट तुम्हारा भूल गया तो रॉन्ग हो जाएगा. डिवीजन ठीक से करना होगा. हम तो डिवीजन तुमको सिखाएंगे, तुम बोल सकते हो सिखाएंगे, लेकिन डिवीजन तो ये 8th क्लास का है. अलजेब्रा
लेकिन वो भी तुमको नहीं होने से तो दिक्कत हो जाएगा। हम भेजेंगे, डिवीजन भी हम भेजेंगे, लेकिन तुमको तो अच्छे से करना होगा ना ये। और कोई है बोलो। सर अब सही से कर लिए सर। अब है 1 माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1। बोलो देखो क्या बोला। तो वन, हाँ 1 माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1। वाई तय नहीं होगा यहाँ पे, वो डायरेक्ट डिवीजन का रिजल्ट मैं चाहता हूँ, रिमाइंडर नहीं। हाँ रिमाइंडर मेरे को नहीं रिक्वायरमेंट, ओनली सिर्फ रिजल्ट। देखो मैं पजल के लिए भेजता रहा, भेज रहा हूँ पजल के लिए। देखो प्लीज देखो, ये है ना तुम्हारा 1 माइनस 2 जेड इनवर्स प्लस जेड टू दी पावर माइनस 2। एंड ऊपर में क्या था? सर जूम करिए ना थोड़ा अच्छा सर। अच्छा, एक काम करते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, डाउनलोड करने से अच्छा होगा, ठीक है। सर हम इसको ना जो आप लिखे 1 प्लस 2 जेड इनवर्स, तो हम उसको ना 2 बाई जेड करके सॉल्व नहीं नहीं किए वो थे। नहीं, वो जो है डायरेक्ट मारो, इतना तुम्हारा उसी से तुम्हारा रिजल्ट ठीक आएगा। मतलब उसको उस तरह से मतलब अरेंज हाँ नहीं करना है, लेकिन डायरेक्ट ही करना है। हाँ लेकिन नहीं तो वो एक काम का है, हम लास्ट जो रिजल्ट होगा ना हम बताएंगे। ये देखो मैंने बोला ना यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड, तो तुम्हारी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड में माना हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल है देखो -1 -2 तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और जो यहाँ पे है 1 प्लस 2 न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस 2 जेड इनवर्स वो भी है। तो पहले तुम क्या दोगे, 1 होगा, तो 1 माइनस 2 जेड इनवर्स प्लस जेड टू द पावर -2 हो गया, दिखाई दे रहा है ना। तो ये माइनस डिवीजन हाँ का क्या सर। प्रोसेस है, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये डिवीजन का मेथड है। तो ये 1 1 कट गया, यहाँ पे 4 जेड इनवर्स हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस जेड टू द पावर -2 हो गया। तो तुम यहाँ पे कितना दोगे, ये 1 है, यहाँ पे 4 जेड इनवर्स है, तो 4 जेड इनवर्स तुमको यहाँ पे देना चाहिए। तो 4 जेड इनवर्स दे दिया, उसी से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, फिर पोलैरिटी चेंज कर दिया, देन सम एल्जेब्रिक सम कर दिया, ये 7 जेड टू द पावर -2 आ गया। तो ये यहाँ पे 1 है, तो पहले वाला जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे बैठ जाएगा, 7 जेड इनवर्स हो गया। 7 जेड इनवर्स लेने के बाद वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो जो चीज मिला लिख दिया, देन यू हैव टू चेंज द पोलैरिटी हियर, दैट इज माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करना है, देन इस तरफ हो गया। तो लास्ट में देखो ये जेड 10 इंटू जेड टू द पावर -3 है, तो लास्ट में क्या ये खाएगा 10 इंटू जेड टू द पावर -3 का। देखो ये कंप्लीट डिवीजन तो नहीं हुआ, ये चलता रहेगा। तो तुम कब तक ये चलता रहेगा, ये दौड़ में तुम कितने दूर रहोगे, तो 4-5 पॉइंट तक तुमको जाना होगा। हाँ तो हम इसी से देखो प्लस करके डॉट डॉट कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये इट विल गो बियॉन्ड दैट। ओके सो ये तुम्हारा रिजल्ट होगा, ठीक है, डिवीजन का रिजल्ट प्लस डॉट डॉट कर दो, ठीक है। इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। डॉट डॉट मीन्स ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है, करेक्ट। नाउ देखो तुमको याद होना चाहिए वो जो जेड ट्रांसफॉर्म का जो प्रॉपर्टीज था, लास्ट में हम बोल रहे थे यहाँ पे डेल्टा फंक्शन करके करके लिखे थे, यहाँ पे हम आज नहीं लिखे, डायरेक्ट कर दिया। 1 तो मीन्स ये देखो एक्चुअली डेल एन होता, और डेल एन माइनस होता, 7 डेल एन -2 होता, हाँ एक्स एन में होता ना, इसका जो एक्स एन जो होता 1, एक्स एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है बाबू, डेल एन होता है,
प्लस 4 जेड इनवर्स, जेड इनवर्स का कितना होता है, जो डेल्टा फंक्शन जो शिफ्टेड होता है टाइम शिफ्टिंग के लिए, तो 4 डेल n माइनस 1 होता, 7 डेल n माइनस 2 होता, 10 डेल n माइनस 3, ये तुम्हारा xn बन जाता। ठीक है, तो वो जो डेल n को मैं हटा के सीक्वेंस लिख दिया। सो डेल n मींस 1 into डेल n, तो इम्प्लीसिट 1 है। 4 into डेल n माइनस 1, तो डेल n माइनस 1 हुआ, उसका इम्प्लीसिट क्या होगा 4, उसका इम्प्लीसिट 7। तो इसी से तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10। तो ये कौन सा वैल्यू है, डेल n n इक्वल 0 का है, इसलिए ये ओरिजिन बन गया। सो 1 4 7 10 इस तरह भी जाएगा। सो दिस इज योर x ऑफ n। सो xz दिया हुआ था एंड xn तुमको बनाना है, क्या बोला था, तुम्हारा पावर सीरीज मेथड। सो दैट इज नथिंग बट पावर सीरीज, क्यों सीरीज का पावर तुम देख रहे हो, है कि नहीं, पावर तुम कंसीडर कर रहे हो। और कॉजल के लिए तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हारा है जेड का पावर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा दोनों पॉलिनोमियल को, देन तुमको डायरेक्ट डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, टफ नहीं है, थोड़ा सा डिवीजन ठीक से कर लो। नाउ देखो इस बार तुम्हारा क्या है, एंटी कोजल का है, नॉन कोजल का है ना। नॉन कोजल के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड तुम बनाए थे पॉलिनोमियल को, यहाँ पे पॉलिनोमियल को क्या करना है, इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में तुमको बनाना है। पहले डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को, बोथ पॉलिनोमियल ऑफ xz को इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड पहले बनाओ, उसके बाद परफॉर्म डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था, ये था, ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो तुमको क्या करना है, फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मींस इसको रिवर्स बनाना है। 2 जेड इनवर्स प्लस 1, इसको लिखना पड़ेगा, नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, जेड टू द पावर माइनस 2 पहले, उसके बाद माइनस 2 जेड इनवर्स, देन प्लस 1, इस तरह तुमको बनाना है xz को। सो xz को रीअरेंज करने के बाद तुम डायरेक्ट डिवीजन डालो। सो नाउ यू टेल मी द रिजल्ट। समझ गई कि नहीं, बोलो। एंटी कोजल के लिए, नॉन कोजल के लिए तुमको क्या करना है, ये प्रोसेस है, दिमाग में रखो, दिस इज योर प्रोसेस स्टेप वाइज। कोजल के लिए क्या सर, हाँ बोलो। सर कॉजल के लिए हमको अरेंज नहीं करना पड़ेगा और एंटी कॉजल के लिए अरेंज करना पड़ेगा। नहीं बाबू, कोजल के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन कोजल में तुम्हारा तुम जो अरेंज करना है वो बना हुआ है। मैंने क्या बोला देखो, मैंने देखो जो नोट तुमको दिया है ना, अभी तक शेयर किया है ना, वहाँ पे लिख दिया मैंने तुम्हारे बेटर इंस्टेंस है, देखो। टू ऑब्टेन कॉजल सीक्वेंस ऑफ xn, राइट बोथ द पॉलिनोमियल ऑफ xn इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ z एंड देन परफॉर्म डायरेक्ट डिवीजन। समझिए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर में तो तुम्हारा दिया हुआ है प्रॉब्लम, इसलिए तुमको बनाना नहीं पड़ा, लेकिन वो सर अगर वहाँ पे, बोलो। सर हेलो सर, अगर ये कॉजल रहेगा तो जेड को भी रिप्रेजेंट करना है, नॉन कॉजल रहेगा तो बस उसका मैग्नीट्यूड को। कहाँ पे, तो फाइनल में, यस सर, फाइनल में। फाइनल में यहाँ पे भी तुमको एम्पलीट्यूड ही लेना है, नॉन कॉजल में भी। ठीक है, लेकिन शुरू में जो है देखो यहाँ पे क्यों, वाई हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में किए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए किए हैं, ये कॉजल के लिए तुम्हारा वैल्यू एक्शन का क्या होगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होना चाहिए ना। आपका +10 जेड पे पावर -3 उसके बाद भी हम किए तो मेरा -27 जेड पे पावर -4 आया, तो उसको नहीं लेंगे क्या? तुम ले सकते हो, लेकिन सुनो ना, कितने दूर तुम जाओगे, वो तो चलते रहेगा ना ये, है, तो तुम मैक्सिमम 3 से 4 तक लीजिएगा। ठीक है, जब कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, एज पर योर चॉइस, क्यों 7 भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करने का टाइम तुम्हारा वेस्टेज होगा एग्जाम में, तो एटलीस्ट 3 to 4 स्टेप यू हैव टू मूव। ओके, तो यहाँ पे देखो पजल का मतलब क्या होता है, पजल का मतलब होता है वो तुम्हारा सिग्नल सीक्वेंस तुम्हारा 0 से पॉजिटिव तक होगा, तो पॉजिटिव तक होगा तो ये तुम्हारा माइनस जेड का पावर माइनस होना चाहिए, है कि नहीं, जेड का पावर प्लस हो जाएगा तो वो राइट साइडेड नहीं होगा, लेफ्ट साइडेड हो जाएगा। तो इसलिए तुमको इसलिए ये बनाने के लिए, जेड का पावर नेगेटिव रखने के लिए तुमको डिक्रीजिंग पावर जेड में उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसे ये प्रोसेस है, इसका ये स्टाइल है, इस तरफ तुमको इन दैट वे दैट स्टेप यू हैव टू फॉलो। इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग बोल दिया, तो एंटी कोजल के लिए क्या होगा, उल्टा होगा, इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड होगा।
तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में अरेंज करने के बाद तुम डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन में डायरेक्ट डिवीजन मेथड करो, उसके बाद तुमको देखो देखो वहां पे जेड का पावर पॉजिटिव आ जाएगा। और जेड का पावर पॉजिटिव मींस क्या होगा, सीक्वेंस के तुम तो मालूम है डेल डेल हाँ डेल सीक्वेंस एन लेफ्ट प्लस साइड में वन, चला डेल जाएगा। एन प्लस टू, डेल एन प्लस थ्री होगा। तो उसका पावर कितना होता है, जेड टू दी पावर वन, जेड टू दी पावर टू, जेड टू दी पावर थ्री, जेड टू दी पावर फोर होता है ना। वो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने तुमको तो सिखाया है, बोल दिया ना। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होता है ना उसको जेड का पावर पॉजिटिव होता है, और राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए वो नेगेटिव होता है। ये जो तुम्हारा प्रॉपर्टीज है वो तुम प्रॉपर्टीज ठीक से पढ़ लो दोबारा, इसी से तुमको ये याद आ जाएगा। लेकिन क्योंकि तुम तो 2-4 दिन पहले ये पढ़ चुके हो, तो sometimes it may happen that not necessarily will come automatically everything in your memory. So on that case you have to follow my notes, previous notes. ओके, तो नोट में नहीं समझ गई तो वीडियो भी तुमको थोड़ा सा दिखना पड़ेगा। उसके बाद भी तुम्हारा कुछ डाउट होगा तो मैं तो हाँ हूँ इधर, मैं हूँ ना, सब टेंशन लेने का बात नहीं है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना, हम तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना। तो चलो वो एंटी कोजन के लिए, नॉन कोजन के लिए, नॉन कोजन के लिए जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तुमको एग्जेट को क्या करना है, दोनों पॉलिनोमियल को इंक्लूसिव पावर ऑफ जेड में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद डिवीजन करना है। तो करो, कोशिश करो, क्या है देखते हैं हम, रिजल्ट बोलो मुझको। तो इसलिए तुमको क्या बोला, वो रिजल्ट जो होगा ना वो जेड का पॉजिटिव पावर आना चाहिए, वो तुमको दिमाग में रखना है। हाँ, नॉन कोजन के लिए जेड का पावर पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो डिवीजन तो लेंगे तो सबसे पहले जेड पे पावर -2 लेंगे, हाँ बाबू, फिर -2 जेड हाँ प्लस पर उसका डिवीजन करेंगे ना हाँ सर। हाँ हाँ, इस तरफ बस, ठीक ठीक, एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक। और डिनोमिनेटर को भी उस तरफ तुमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पहले 2z इनवर्स प्लस 1, न्यूमरेटर सॉरी न्यूमरेटर को भी सेम तरीके से तुमको अरेंज करना है, और डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। हाँ, दो पॉलीनोमियल मींस न्यूमरेटर के लिए एक पॉलीनोमियल, डिनोमिनेटर के लिए एक पॉलीनोमियल। And the process is called power series method। टेंशन लेने के नहीं, लोग पावर सीरीज बोलेंगे तो टेंशन लेने के नहीं, ये बात।
सब आ रहा है क्या 2z प्लस 5z स्क्वायर समथिंग लाइक दैट बाबू ये सर 2z प्लस 5z स्क्वायर तक आया है। ठीक 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 इसके बाद बोलो 4 भर जाइए ना 4 तक जाइए उसके बाद third difference। वीरेंद्र वीरेंद्र कर रहे हो ना Yes, sir. हम्म एक दिन तुम्हारा मैं भाईवा अरेंज करूंगा इससे क्या होगा ना वो वीडियो वीडियो ऑन करने से तुमको पहचान भी आ जाएगा इंट्रोडक्शन भी अच्छा से होगा ठीक है तुम कॉलेज आओगे तो मैं तुमको देखने से भी मेरा समझ में नहीं आएगा ये धीरेन्द्र है ये प्रिंसी है और ये तुम्हारा जो भी है एक्चुअली ठीक है नेहा है ननीशु है बबीता बबीता और पूनम जो भी है ठीक है रवि किसराज ठीक है सौरभ प्रसाद ये तुम लोग तो एवरीडे क्लास करते हो ना मैक्सिमम इस इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में मैं सब प्रिंसिपल को मैं बोल रही था जिस दिन जो इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर 37 है लगभग 35 एवरीडे वो लोग क्लास करते हैं टिल डेट ना बोलो उसके बाद क्या हुआ 8 जेट की ग्रुप आया Yes, sir. अच्छा देन बोलो उसके बाद 11 11 आया 11 जेड टू दी पावर 4 बोलो क्या है हो गया ना हम भेज देंगे आंसर जेड 5 जेड का तो हो गया तो पहले से
उसके बाद 8z क्यूब एंड 11z टू द पावर 4 आया क्या? देखो मैं दे दिया यहाँ पे। हेलो सर। बोलो। सर आंसर आया है 2z। हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। 2z प्लस 5z स्क्वायर प्लस 8z क्यूब प्लस 11z टू द पावर 4। वेरी गुड। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा फाइनल तक करो। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट क्या होगा बोलो। एक्शन क्या होगा बोलो। सर एक्शन 2 5 8 11 होगा ना सर? ये उल्टा लिखना होगा बाबू। ठीक है, पहले 14 लिखो, फिर 11 लिखो, 8 लिखो, 5 लिखो, फिर 2 लिखो। पहले डॉट 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 राइट साइड से लेफ्ट साइड से लिखो। पहले डॉट 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 देन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दैट मींस पहले क्या होगा 11 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 2 होगा। क्योंकि ये यस सर। नॉन कॉजल है इसलिए लेफ्ट को डॉट डॉट रखना चाहिए। ओके, नाउ आई कैन शो यू द रिजल्ट। ये डिवीजन है, डिवीजन करके ये 2z 5z स्क्वायर प्लस 8z क्यूब प्लस 11z टू द पावर 4। सो और एक घर हम ले लिया 14z क्यूब ना, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखो 14z टू द पावर 5 होने से हो जाएगा, लेकिन 4 तो भी करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेके क्या होगा, ये z1 है मींस n प्लस 1 n प्लस 2 डेल n प्लस 3 डेल n प्लस 4 डेल n प्लस 5। दैट मींस सर आप n। बोले थे बस हाँ बोलो। सर आप बस 4 ही इंटरवल लेने के लिए बोले तो इसलिए 4 ही लिए। ठीक है, नो नो इशू, नो इशू, ठीक है, नो इशू। तो ना देखो ये n का वैल्यू 1 है, ठीक है, 2 है, तो n का वैल्यू 1 2, इसलिए तुमको राइट साइड से लिखना पड़ेगा 14 11 8 5 2, और तो कुछ नहीं है। बाकी जो है यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, वो डॉट डॉट हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 आके 14 11 8 5 2 बस। तो ये देखने में मालूम पड़ता है ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर n इक्वल टू 1 में खत्म हो गया दिस एक्सप्रेशन में। तो ये नॉन कॉजल है। तो ये तुम्हारा बेसिकली इससे पावर सीरीज मेथड। ओके, सो पावर सीरीज मेथड हम लोग सीख गए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, और एक तरीके में हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तुमको हम लास्ट में इस हफ्ते का एंड में हम कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तक दे देंगे। ठीक है, तो आंसर भी दे, आंसर मीन फाइनल आंसर हम दे देंगे, डिराइव तुमको करना है ना, सॉल्यूशन तुमको बनाना है, रिजल्ट हम दे देंगे। तो हम कोशिश कर रहा हूँ कुछ देने के लिए तुमको, तो तुम घर में ये प्रैक्टिस करते रहना। बोलो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है, नहीं तो हम एंड करते हैं। सर अभी वाला सॉल्यूशन भेज दीजिए ना, आप क्यों डिलीट कर दिए? अच्छा नहीं ओ अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम लोग बोल रहे थे ना इसलिए वो डिलीट कर दिया, फिर हम भेज देते, नो इशू। थैंक यू सर। कल 9:30 बजे ठीक है सर, मिलते हैं हम थैंक यू लोग, है सर। ना? हाँ कल सर कोई 9:30 प्रॉब्लम बजे। नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, कल 9:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, कल ज्यादा होने से भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज तुम्हारा और भी क्लास है, जाओ फ्रेश होकर लंच करके क्लास करो। ठीक है।
सर कल तो क्लास नहीं ना होगा सर? होगा होगा, साढ़े Okay, नौ बजे sir. से Sir, होगा। thank you, sir. वो Thank you, ट्यूसडे का sir. क्लास कॉल होगा, ट्यूसडे का। हाँ अच्छा Tuesday- ठीक है सर। हाँ